Hello. We were solving some problem from the unit first of UGC NET syllabus, that is fundamentals of environmental. And the next problem we have taken is from previous year's NET examination, and the question is based on you are given with some assertion and reason. The assertion is a temperature is in the stratosphere is increases with increase in altitude, and reason is photo dissociation of the O2 in the stratosphere makes the lapse rate positive. So let's first check the assertion. It says temperature in the stratosphere uh, increases with the increase in altitude, which is a true statement. Whereas when it comes to the reason, this photo disassociation uh, of the O2 in the stratosphere makes the lapse rate positive. It is a false one. So the correct answer of this question should be A is true but R is false. It should be option number C. Next question is, mixing height during night is typically in the range less than few hundred meters. It's ranging between 1 to 2 किलोमीटर, 2 to 3 किलोमीटर and 3 to 4 किलोमीटर. So पहले समझते हैं मिक्सिंग हाइट क्या होती है. तो मिक्सिंग हाइट refers to the vertical extent within the atmosphere where pollutant can disperse and mix effectively. ओके. सो एक्चुअल में जो नाइट के टाइम पे होता है, मिक्सिंग हाइट की जो रेंज होती है इट कम्स बिटवीन लेस देन few hundred meters. Actually, the limitation occurs because stable air prevent vertical mixing, trapping pollutant near the surface and reducing their dispersion. तो एक्चुअल में जो मिक्सिंग हाइट है ड्यूरिंग द नाइट आर कन्फाइंड टू अ few hundred meters, emphasizing the challenges in pollutant dispersion and air quality management under such conditions. So answer will be option number A. Next question is, the ionic series species O plus, O2 plus and N2 are found in generally in troposphere में, stratosphere में, mesospheres में या heterosphere में. ठीक. तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इट इज़ दे आर जनरली फाउंड इन हेट्रोस्पेयर. ओके. द हेट्रोस्फेयर एक तरीके से इट इज़ अपर पार्ट ऑफ द अर्थ की एटमॉस्फेयर का, जहाँ गैस आर स्ट्रेटिफाइड इनटू लेयर्स बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है. तो जो लाइटर गैसेस होती हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, एंड ऑक्सीजन हो गया, ये डोमिनेट करते हैं अपर मोस्ट लेयर को, जबकि जो हैवियर गैसेस होती है लाइक नाइट्रोजन हो गया एंड ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये नॉर्मली हमारी डोमिनेट करती हैं, ये हमारी लोअर लेयर में फाउंड आउट होती हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हेट्रोस्फेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू फाइंड आउट द मैच. You simply have to, you are given with two lists. List 1 has aerosols, type of aerosols, and list 2 have different sources, and you simply have to match these. So you are given with primary natural aerosol, secondary natural aerosols, primary anthropogenic aerosols and secondary anthropogenic aerosols. Okay. So एरोसॉल एक तरीके से क्या होता है, दे आर द टाइनी पार्टिकल जो सस्पेंड होते हैं इन एटमॉस्फेयर में. ठीक है. उनको हम उनके सोर्सेज के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं. ठीक. तो एक्चुअल में जो प्राइमरी नेचुरल एरोसोल है, दैट द सोर्स इज सॉइल डस्ट. वेयर जो सेकेंडरी नेचुरल एरोसोल्स हैं, इसका जो सोर्स है दैट इज ऑर्गेनिक मैटर्स फ्रॉम बायोजेनिक गैसेस से. ठीक है. वेयर एज व्हेन इट कम्स टू द प्राइमरी एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स, ठीक, ये आता है, इसका जो सोर्स है इट इज़ फ्रॉम सूट्स फ्रॉम बायोमास बर्निंग से, और जो सेकेंडरी एंथ्रोपोजेनिक है वो हमारा सल्फेट एरोसोल्स फ्रॉम जो कहाँ से आते हैं, पावर प्लांट या से SO2 एमिशन से. यानी इसका जो ऑप्शन हो गया इट विल बी A इज़ मैचिंग विद 4, B इज़ मैचिंग विद 1, C इज़ मैचिंग विद 3, and sorry, C is matching with 2 and D is matching with 3. Next question is,
For spherical aerosol particle smaller than about 30 micrometer with the density greater than air, the settling velocity varies with size ds. तो जो एक्चुअल में जो सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इसको हम लिख सकते हैं vs will be equals to 2/9 into रो p माइनस रो a अपॉन ईटा इंटू जी डी स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा वी एस हमारा सेटलिंग वेलोसिटी होगी, ये रो पी हो गया, ये डेंसिटी हो गई पार्टिकल की, ये डेंसिटी पी रो ए हो गया हमारा डेंसिटी ऑफ एयर डेंसिटी. ठीक है, वेर एज जो हमारा जी है, जी हमारा एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. ठीक है, एंड ईटा इज़ द डायनेमिक वेलोसिटी ऑफ द एयर है. तो इस फॉर्मूला से हम डायरेक्टली आप देख सकते हो कि दिस वी एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ सल्फेट एरोसॉल इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज टू डिक्रीज पार्टिसिपेशन, डिस्ट्रॉय ओजोन, या कूल क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या वार्म ग्लोबल क्लाइमेट के लिए. ठीक, तो जो हमारा सल्फेट एरोसोल्स हैं वो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं दैट आर इंट्रोड्यूस इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बोथ. वो कहाँ से आते हैं, या तो नेचुरल सोर्सेज से भी आते हैं और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से भी आते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, या फिर फॉसिल फ्यूल के कंबशन से हो गया. ठीक, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनका अल्बिडो बहुत हाई होता है. इट मीन्स सिंपली दे कैन रिफ्लेक्ट इनकमिंग सोलर रेडिएशन बैक इनटू द स्पेस, और जिससे हमको क्या कौन सा इफेक्ट मिलता है, दैट इज कूल ग्लोबल क्लाइमेट. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल से प्रोसेस फॉर एरोसोल इज इंटरसेप्शन, सेडिमेंटेशन, इम्पैक्शन एंड दिस शुड बी वी डिपोजिशन, नहीं इट शुड बी वेट डिपोजिशन. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ वेट डिपोजिशन. सो एक्चुअल में इसका जो आंसर होगा दैट विल बी डी, दैट इज़ वेट डिपोजिशन. ठीक, वेट डिपोजिशन इज़ क्रिटिकल एज ग्लोबल सिंक प्रोसेस फॉर एरोसॉल. ये इन्वॉल्व करता है किसको, रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और किससे, थ्रू प्रेसिपिटेशन से. ठीक है, और वो प्रेसिपिटेशन में सारा आएगा, रेन, स्नो, हेल. ठीक, जो आपका क्या कर रहा है, विच इफेक्टली इसकी वेंज एरोसोल एंड पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर, और उससे वो क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है किसमें, लैंड में और वाटर बॉडीज़ में. ठीक, तो जो वेट डिपोजिशन है प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट रोल. ठीक है, इन किस चीज़ में, क्लीनिंग द एटमॉस्फेयर. ठीक, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज यू आर गिवन विथ सम असर्शन एंड रीजन. असर्शन इज evaporation of surface water is reduced due to the black carbon in the atmosphere. रीज़न दे रखा है जो प्रेजेंस होता है एरोसॉल हैविंग ब्लैक कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमिंग इफेक्ट, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. एक्चुअल में इस केस में assertion is also true and the R is the correct explanation of this your assertion. देखो पहला स्टेटमेंट है दैट इज इवेपोरेशन ऑफ सरफेस वाटर इज रिड्यूस टू द ब्लैक कार्बन इन द एटमॉस्फेयर. ठीक, एक्चुअल में क्या है, ये सही है. क्यों, क्योंकि जो ब्लैक कार्बन होती है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है. ठीक, जिससे कि क्या होगा, जो लोकल विच विल लोकलाइज द वार्मिंग एंड ऑल्टरिंग द लोकल टेम्परेचर ग्रेडियंट, जिससे क्या हो जा रहा है, ये इफ़ेक्ट करता है इवेपोरेशन के रेट को. ओके, जो हमारा रीज़न है ये हमको क्या असर्ट कर रहा है कि इससे डिमिंग इफेक्ट आ रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. क्यों, क्योंकि जो एरोसॉल्स होते हैं जिसमें ब्लैक कार्बन भी इंक्लूड होती है, ये रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को स्पेस में. ठीक है, जिससे कि रिड्यूस करता है सोलर अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस एंड पोटेंशियली रिड्यूसिंग द इवेपोरेशन रेट. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए. दोनों सही है और आर इज़ द करेक्ट जो रीज़न है दैट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन नंबर ए. ठीक, अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द ग्रीन हाउस गैस ओजोन एब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स ए लॉन्ग वेव रेडिएशन नियर द वेवलेंथ 9.6 माइक्रोमीटर, 11.2, 6.9 एंड 17.3 माइक्रोमीटर. ठीक, तो एक्चुअल में जो ओजोन इन द अर्थ के एटमॉस्फेयर में होती है वो एब्जॉर्ब करती है और एमिट करती है रेडिएशन को प्राइमरली अराउंड द वेब लेंथ ऑफ 9.6 माइक्रोमीटर. ठीक, ये हमारा क्या करता है, ये बेसिकली एनर्जी बैलेंस या एक तरीके से क्लाइमेट
एटमॉस्फेयर की जो क्लाइमेट रेगुलेशन की प्रोसेस है इसको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक नेचर ऑफ द लिथोस्फेयर डज नॉट अराइज फ्रॉम द एलिमेंट सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। एक्चुअल में जो बेसिक नेचर है ऑफ द लिथोस्फेयर ये अराइज होता है सबसे, किससे? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक। अब एक्चुअल में क्या है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं किस चीज़ में? फॉर्मेशन कौन से मिनरल्स के? जैसे माइका, कैल्साइट, ऑल्वाइन एंड पायरोक्सिन के फॉर्मेशन में, ठीक है। अब सिलिकॉन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ लिथोस्फेयर, जो फॉर्म करता है, फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ सिलिकेट मिनरल्स विच आर अबंडेंट, जो हमारे अर्थ की क्रस्ट में बहुत अबंडेंट में पाए जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि द बेसिक नेचर ऑफ लिथोस्फेयर डज नॉट अराइज स्पेसिफिकली फ्रॉम SI एलोन, इसके साथ बहुत से अदर एलिमेंट के भी कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ द रीज़न कि दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। सो इट मीन्स द बेसिक नेचर ऑफ जो लिथोस्फेयर का बेसिक नेचर है वो सिलिकॉन से नहीं आता है, ठीक है। इसके आता है बट इसके साथ और कंपोनेंट भी ऐड होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी।